Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Audible. So we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Let me look at myself. I am a soul, the power that thinks all day. From today, I will have the awareness that my every thought is the energy that I create and radiate to the world. Let me look at myself. Check what kind of thoughts I create for others throughout the day. They may be doing anything, but what are my thoughts for them? From today, I have the awareness that what I think of others is the foundation of my relationship with them. What I add to this foundation is my choice. Today, throughout the day, I will lovingly check my thoughts for everyone. Then gradually change those. The foundation of my relationships is my choice and creation. From today, every thought that I add to this foundation will be clean, pure, and loving. Om Shanti. Okay, thank you so much, everyone. So we'll begin with today's session. Okay, is the screen visible and am I audible? Yes, you are audible and visible. All right, thank you so much. Okay, so today's chapter is It is all about what you behold. तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं If there is a misunderstanding between me and someone, how should I stop that negatively from piling up within me? If I try to suppress it, it raises its head again. How can I convert it into something positive? तो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं कि अगर मेरे और किसी में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो जो माइंड में जो थॉट्स नेगेटिव चलते हैं उसको कैसे रोकें पाइल अप होने से क्योंकि अगर वो सप्रेस करते हैं तो वो दोबारा दोबारा आते हैं तो उसको हाउ कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग पॉजिटिव जो नेगेटिविटी आती है माइंड में उसको पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करें तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं If we create negative thoughts for others for a long period of time, be it a few hours or years, those vibrations create heavy energy.
Then we discuss the matter with our friends and family repeatedly and collectively create very heavy negative energy. It has been found that if a group of people meditate collectively, they create very powerful positive energy that has a good influence on the subject they focus on. For example, in pranic healing or Reiki, positive emotional energy created collectively is concentrated on a patient sitting far away and is able to heal his physical pain. तो सिस्टर शिवानी जी कह रहे हैं कि अगर हम किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स करें फॉर बहुत टाइम के लिए हमारे माइंड में अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो वो एक बहुत हैवी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और फिर हम क्या करते हैं हम यही नेगेटिव बातें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रिपीट करते रहते हैं और फिर वो नेगेटिव एनर्जी ही रेडिएट होती रहती है तो वो और बढ़ती रहती है। सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल मतलब अगर कुछ लोग हम बैठ के साथ में मेडिटेट करें तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है वो पॉजिटिव एनर्जी होती है मेडिटेशन में। जैसे रेकी की बात की है उन्होंने कि जैसे कोई सफ़र कर रहे हैं फिजिकल पेन में भी है तो कलेक्टिव जब वो पॉजिटिव इमोशनल एनर्जी क्रिएट होती है तो वो भी हील होता है। इफ इवन इफ समबडी इज इन फिजिकल पेन कैन ऑल्सो बी हील्ड। सो सुरेश ओबरॉय जी कह रहे हैं दिस इज डिस्टेंस हीलिंग। Sister Shivani कहते हैं all of us are souls having a subtle body and a physical body through which we operate। तो हम सब क्या है souls है हमारी subtle body है और physical body भी है जिससे हम operate करते हैं। A disease does not affect the physical body directly. It first starts as an experience of pain or suffering in the soul। तो जो डिजीज होती है वो फिजिकल बॉडी को डायरेक्टली नहीं अफेक्ट करती। सबसे पहले जो एक्सपीरियंस है इट स्टार्ट्स इन द सोल। दिस कॉजेज ब्लॉकेज इन द सटल बॉडी एंड दैट इज देन मैनिफेस्टेड इन द फिजिकल बॉडी। तो सबसे पहले जो ब्लॉकेज होती है वो हमारे सटल बॉडी में होती है और वही फिर फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती है। In distant healing, the positive energy sent to the patient first reaches the soul. It then clears the blockage in the soul's energy field or aura, i.e., the subtle body. This brings relief to the patient sitting far away as his physical body is healed. So the power of mind works. तो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो सटल बॉडी पे काम करते हैं। तो जब किसी पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम फिजिकल पेन तो जो हम वाइब्रेशन सेंड करते हैं मेडिटेशन के थ्रू पॉजिटिव एनर्जी रेकी के थ्रू वो पहले उसके सोल के ब्लॉकेजेस को हील करते हैं। इट ऑल वर्क्स ऑन अ सटल लेवल ऑफ वाइब्रेशंस। इट्स नॉट ऑन फिजिकल। फर्स्ट इट वर्क्स ऑन सटल उसके बाद फिजिकल हीलिंग होती है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं डज इट वर्क। सिस्टर शिवानी कहते हैं सिमिलरली इफ वी कलेक्टिवली send negative energy to someone that also works। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं इट डज वर्क। सिस्टर शिवानी कहते हैं हाँ तो जो हम कलेक्टिवली नेगेटिव एनर्जी भी किसी को भेजते हैं वो भी वर्क करती है। Today, a majority of us are able to create negative thoughts faster and more easily than pure and positive ones. The person for whom we create those thoughts could also be in an emotionally weak state. So he will be very vulnerable to the thoughts he receives from us. That is why, in the present scenario, it is easier for negative energy to have an effect on us as compared to pure energy। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं कि जैसे पॉजिटिव एनर्जी कलेक्टिवली हम करते हैं रेकी के थ्रू मेडिटेशन के थ्रू वो काम करती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी काम करती है और नेगेटिव एनर्जी फास्टर वर्क करती है।
बिकॉज जिसके लिए हम वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी इमोशनली वीक स्टेट में ही होता है, तो वो बहुत वनरेबल होता है टू दोज थॉट्स, बहुत इजीली कैच कर लेते हैं वो थॉट्स। तो इसलिए आज की डेट में नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती है मोर देन प्योर पॉजिटिव एनर्जी। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं दिस इज बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी विद इन। Yes, even the other person has a lot of it. Just like we tune both the transmitter and receiver to the same frequency to make the connection work, similar is the case with two people. Even if we constantly create good thoughts for others, it may take longer to have an impact on them because they may be living in a state of anger, hurt, or pain. So our frequencies may not match. For others to receive what we are transmitting, our frequencies should be the same. तो सिस्टर शिवानी कहते हैं कि जैसे एक ट्रांसमीटर और रिसीवर सेम फ्रीक्वेंसी में होते हैं तो कनेक्शन कैसे होता है, बड़ी जल्दी कैच हो जाता है। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली अच्छे थॉट्स, गुड पॉजिटिव प्योर थॉट्स क्रिएट कर भी रहे हैं, कई बार क्या होता है वो फिर भी ज़्यादा टाइम लगता है इम्पैक्ट में आने के लिए, क्योंकि जिसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या है, वो अभी भी एंगर और हर्ट में ही है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी एंगर और हर्ट में है, तो हमारी फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच नहीं कर रही। तो तभी कई बारी ऐसे होता है कि हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ से कर रहे हैं, बट उधर इतना अफेक्ट नहीं हो रहा उसका, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, तो इट टेक्स लॉन्गर। बट जब हाँ हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती है तो बहुत जल्दी ट्रांसफर होती है एनर्जीज। ओके। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं ईच टाइम वी हैव अ नेगेटिव थॉट वी हैव टू रिप्लेस इट विथ अ पॉजिटिव वन। If we send others positive energy, we have to replace it with a positive one. If we send others positive energy when they are in their own pain, they may not be able to experience our vibrations immediately. We have to send them positive energy consistently for a long time so that it overpowers their pain and anger and changes the quality of their thinking. On the other hand, if we send them negative energy, it is easier for them to catch it because they are already on that frequency. Negative to negative energy exchange may happen almost instantly. तो सिस्टर शिवानी क्या कह रहे हैं, अगर हम पॉजिटिव एनर्जी भेज भी रहे हैं, बट अगर जिसको हम भेज रहे हैं वो अपने ही पेन में है, तो वो हमारे वाइब्रेशंस को इमीडिएटली एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। तो हमें उनको कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव एनर्जी सेंड करनी है ताकि उनका जो अंदर एंगर है, पेन है, वो पॉजिटिव एनर्जी से ओवर पावर हो, यू नो तो उनकी क्वालिटी ऑफ थिंकिंग चेंज हो। लेकिन अगर हम उनको नेगेटिव एनर्जी भेजेंगे वो बहुत जल्दी कैच कर लेंगे, क्योंकि क्या है वो सेम फ्रीक्वेंसी पे है। तो नेगेटिव टू नेगेटिव happens very quickly. The answer to your question is that while others make while others' mistakes and negativities may be visible to us, we have the power to decide how long to keep those on our mind. तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं हमें दूसरों की गलतियां नेगेटिविटीज दिख भी रही हैं, बट हमारे पास पावर है टू डिसाइड कि हमें उनको कब तक अपने माइंड में रखना है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं डू वी हैव अ चॉइस ओवर व्हाट टू कीप ऑन आवर माइंड। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं yes, it is our choice. This place we are at right now has natural beauty and serenity, but this same space is also littered and has insects. It is for us to decide where we want to focus. If we see the beautiful greenery and feel the lovely vibrations, then we are appreciating the good qualities of this place and those remain on our mind. It does not mean
that there are no insects here or this place is not wet or littered. But what is the energy that we are absorbing? The moment we think good, we feel good. तो सिस्टर शिवानी क्या कह रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है। जहाँ हम आज हैं वहाँ पे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सीनरीज भी हैं और गंदगी भी है। बोथ द थिंग्स आर देयर। अब हम किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। अगर हम ब्यूटीफुल सीनरीज देख रहे हैं, लव, प्योरिटी, ये सब विजुलाइज कर रहे हैं, पॉजिटिविटी में रह रहे हैं, तो दैट इज व्हाट वील फील एंड दैट विल बी आवर वाइब्रेशंस। तो हम वही वाइब्रेशंस रेडिएट करेंगे। फिर हम बाकियों की भी अच्छी क्वालिटीज और उनके अंदर भी वो गुड क्वालिटीज और प्योर एनर्जी देखेंगे। बट उसका मतलब ये नहीं कि गंदगी नहीं है, वो भी है। बट हम क्या अब्जॉर्ब कर रहे हैं, सो द मोमेंट वी स्टार्ट थिंकिंग गुड, द मोमेंट वी स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव, तो वी स्टार्ट फीलिंग गुड एज वेल। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, सपोज वी फर्स्ट सी द लिटर, देन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस एंड ऑल्सो propose टू क्लीन इट, इट मीन्स वी आर सीइंग बोथ द थिंग्स। सिस्टर शिवानी कहते हैं, द पॉइंट इज वेयर इज आवर एनर्जी गोइंग फर्स्ट? You had once given the example of a black dot on a whiteboard. One way of looking at it is such a big mark. Though it is a whiteboard, the spot is so significant. The person having this perspective will always highlight negativities and take the positive things for granted. Another person may see the same thing as a beautiful whiteboard with a small black mark. So the situation is the same, but the viewpoint is different. तो सिस्टर शिवानी कैसे एग्जाम्पल समझा रही, जैसे मिसिंग टाइल सिंड्रोम भी होता है कि एक वॉल पे सब टाइल्स एंड देयर इज जस्ट वन मिसिंग, तो हमारी नज़र सबसे पहले वो मिसिंग टाइल पे जाती है। इन द सेम वे अगर एक वाइट बोर्ड है उस पे एक ब्लैक डॉट है, तो सबसे पहले हमारी नज़र क्या जाएगी? ऑन द ब्लैक डॉट। बट वाइट बोर्ड इज सो सिग्निफिकेंट, बट अगर हम उस ब्लैक डॉट पे ही फोकस करेंगे तो हमें वो वाइटनेस दिखेगी नहीं ना, हम उस ब्लैक पे ही फोकस कर रहे हैं। तो इट इज अपॉन अस कि हम किस चीज पे फोकस करते हैं, ऑन द वाइट ब्लैक, ऑन द वाइट बोर्ड और ऑन जस्ट दैट वन ब्लैक पॉइंट। Similarly, if we come here and say, what a beautiful garden, it is hard to find such natural beauty in our city. There is so much fresh air here. Our state of mind will be good and we will feel nice. After that, we also see that the place is wet, a bit dirty, and cold. We accept that and take care not to step on the litter, but continue working here. तो सिमिलरली अगर हम जैसे गार्डन में जाएं तो हम देखते हैं कितनी नेचुरल ब्यूटी है यहाँ पे, और फिर हमें बहुत अच्छा लगता है, माइंड को बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। और फिर हम कोई जगह वहाँ पे वेट डर्टी होती है, तो हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, हम वी टेक केयर कि हम उस गंदगी पे पैर ना रखें। हम उसको देखते हैं, बट वी जस्ट हैव टू बी केयरफुल नॉट टू स्टेप ऑन इट। It is one thing to see what's around us and another thing to keep it on our mind. We cannot stop ourselves from hearing or seeing what is happening in the world today, but we can decide what to keep on our mind for how long. तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं कि एक चीज है कि हम देखते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, बट दूसरा पॉइंट क्या है कि हम वो कितना अपने दिमाग में रखते हैं। अभी हम देखना तो बंद नहीं कर सकते जो भी हो रहा है आजकल दुनिया में, वी आर वॉचिंग इट, वी आर हियरिंग इट, बट हाउ लॉन्ग आर वी कीपिंग इट इन आवर माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारा ये डिसीजन हमारे हाथ में कि हम उस बारे में कितना सोचते हैं। Spirituality teaches us that we become what we think, that whatever we keep on our mind becomes our property. Right now, the litter is on the ground, but if we keep churning that thought, our mind will soon become a garbage bin.
If we churn others' weaknesses, that impurity will stay on our mind and soon become part of our thought process. There are negative things around us, but we need not absorb those into our system. तो सिस्टर शिवानी समझा रहे कि स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है, कि हमें क्या सोचना है, हमारे माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं। वो जो हमारे माइंड में है दैट इज आवर प्रॉपर्टी। तो अभी हम देख रहे हैं कि देयर इज लिटर ऑन द ग्राउंड, अभी हम देखते हैं कि सब जगह नेगेटिविटी है, एंगर, हर्ट, रिजेंटमेंट है। बट अगर हम सबके लिए ये नेगेटिव थॉट्स, ये वीकनेसेस अपने माइंड में इन सब चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? आवर माइंड विल बिकम लाइक अ गार्बेज बिन। क्योंकि यही थॉट्स, जो दूसरों की वीकनेसेस है, यही सब हमारे थॉट प्रोसेस में चलते रहेंगे। तो सिस्टर शिवानी समझा रहे, देर आर नेगेटिव थिंग्स अराउंड अस, बट वी नीड नॉट अब्सॉर्ब दोज इनटू आवर सिस्टम। जो हमारे माइंड पे चलता है उस पे हमारा फुल कंट्रोल है। हमें ये सब नेगेटिविटी अब्सॉर्ब नहीं करनी है। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, इफ आई हैव ऑलरेडी अब्सॉर्ब्ड समवन्स वीकनेस एंड ऑल्सो क्रिएटेड नेगेटिव थॉट्स अबाउट हिम, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो अगर मेरे माइंड में ऑलरेडी किसी की वीकनेस और नेगेटिव थॉट्स चल रही है तो फिर क्या करें? तो सिस्टर शिवानी समझा रहे, वी मे थिंक अबाउट अदर्स वीकनेसेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, अ फ्यू आवर्स, अ फ्यू years, or a lifetime. It is our choice. The more we think about it, the more it becomes our property. When we realize that thinking about others' negativity damages us, them, and our relationship, we can stop and change it. For bringing about that change, we must have the following understanding. When we tell somebody it is your fault, who is the one deciding what is wrong? What is wrong for you could be right for me. There is negativity around us, but we need not absorb it into our system. तो सिस्टर शिवानी वही समझा रहे हैं कि हम किसी की नेगेटिविटी हमारे माइंड में चल रही है, अभी वो थोड़े मिनट्स के लिए है, थोड़े घंटों के लिए, या पूरे लाइफ टाइम के, दैट इज आवर चॉइस। जब हम वो रियलाइज करते हैं कि ये नेगेटिविटी जो मैं इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये हमारे रिलेशनशिप को डैमेज कर रहा है, तो हमें हमारे पास वो पावर है कि हम उसको स्टॉप करें, थिंकिंग चेंज करें, उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रीअफर्म करें। तो उसके लिए सिस्टर शिवानी ने थोड़े स्टेप्स भी बताए हैं कि जैसे हम कहते हैं ना, इट इज़ योर फॉल्ट, तो कौन डिसाइड कर रहा है किसका फॉल्ट है? दैट इज, हम अपने माइंड में डिसाइड कर रहे हैं, या ये एक एक कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि इट इज़ योर फॉल्ट। तो उनके लिए जो सही हो सकता है वो हो सकता है हमारे लिए गलत हो। तो हमें ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा माइंडफुल होके सोचना है, कि हम ये ब्लेम ना करें या क्रिटिसाइज ना करें, और जो भी नेगेटिविटी है हमारे आसपास हमें वो अपने सिस्टम में ऑब्जॉर्ब नहीं करना है। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, यस इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी ऑल हैव डिफरेंट संस्कार्स। It is simple. We see things according to our perspective. If others do not work according to our definition of right, we label them wrong. However, others will not change because of us, as they may not share our perspective. तो सिस्टर शिवानी कह रहे हैं कि हम जो भी देखते हैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखते हैं, वो हमारा डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग है। बट जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो दूसरों का नहीं होगा, और वो हमारे लिए चेंज भी नहीं करेंगे। If we look for people whose definition of right and wrong matches with ours in every aspect, we will not find even a single person. The longer we hold on to this desire, the more difficult it will be for us to create smooth energy in relationships.
So, first, understand that the other person is not wrong but different from us. There is a lot of difference between these two ways of thinking. तो अगर हम ढूंढने जाएं कि जो हमारे हिसाब से राइट और रॉन्ग है वो भी दूसरे के लिए भी सेम हो, अगर हम इफ वी ट्राई टू गो एंड लुक फॉर सच अ पर्सन, तो हमें कोई नहीं मिलेगा। तो जब तक हमारे माइंड में ये डिजायर है कि सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, जो मैं राइट, जो मेरे लिए राइट है वो दूसरे के लिए भी राइट होना चाहिए, जितना टाइम हम इस थॉट प्रोसेस में रहेंगे हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा स्मूथ रिलेशनशिप्स को डेवलप करना, वो पॉजिटिव एनर्जी रखना रिलेशनशिप्स में। तो सबसे पहले हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जो दूसरा है, द अदर पर्सन हु इज विद अस, ही इज नॉट रॉन्ग बट डिफरेंट। उनकी थिंकिंग डिफरेंट है, हमारी डिफरेंट है। तो ये राइट और रॉन्ग के जो बीच का डिफरेंस है ना, इस थिंकिंग को हमें चेंज करनी है। वी डोंट हैव टू थिंक दे आर रॉन्ग, वी हैव टू थिंक दे आर डिफरेंट। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, यस, एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द यूनिवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अ सन इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फादर, सो इज अ डॉटर फ्रॉम हर मदर एंड अ ब्रदर फ्रॉम हिज ब्रदर। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, एवरी सोल इज यूनिक एंड हैज इट्स ओन जर्नी। Each one has a long history of several lifetimes. The memories of experiences recorded on one soul cannot match with any other. One way of living is to recognize this truth. The other way of living is to think, I am right, you are wrong, but I have to work with you. If we work together or live together out of compulsion and continue to create such negative energy for each other, what will the foundation of our relationship be? When we keep sending the vibration, you are wrong, what are we going to receive from the other side? तो सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि एक वे ऑफ थिंकिंग क्या है, कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि हर सोल, एवरी सोल इज यूनिक और सबकी अपनी जर्नी है। ये बहुत हम बहुत डीपली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है, सेवरल लाइफ टाइम्स की है। अ सोल इज कंटिन्यूसली ऑन अ जर्नी। तो जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक सोल के अलग अलग हैं, एंड वो मैच नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है जो हमें रखनी चाहिए। और एक और वे क्या सिस्टर शिवानी बताते हैं कि हम अगर ये सोचें कि मैं सही हूँ और आप गलत हो, बट अब आपके साथ काम करना है, तो अगर हम इस इस वे ऑफ थिंकिंग से वर्क करें, तो वो नेगेटिव एनर्जी क्लैश होएगी, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप क्या है कि हम हम तो सही हैं बट हम आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये जो वाइब्रेशन है ना कि यू आर रॉन्ग, तो हमें दूसरी साइड से फिर क्या मिलेगा जब जब हम ये वाइब्रेशन रेडिएट करेंगे कि आप गलत हो। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, दे विल थिंक दैट वी आर रॉन्ग। तो सिस्टर शिवानी कहते हैं, इफ वन रॉन्ग इज बॉन्डिंग विद अनदर रॉन्ग, what will become of that relationship? Let us look at this aspect in the parent child relationship. Parents must check how many times they create the thought that their children are wrong. They think it is natural for them to object to their children's wrong actions, and it is their role to correct them. They find fault in many things that their children do. The time they wake up in the morning or sleep at night, the food they eat, the way they dress up, duration they watch TV, the hours they use the internet, they are chatting on social networking sites, the friends they make, or the speed at which they drive. When parents constantly send the you are wrong energy to their children, they are bound to receive similar energy in return. When such negative energy is exchanged in the most beautiful relationship, we label the outcome as generation gap. Eventually, parents tell their children, we don't understand you, and children say, neither do we.
तो वही सिस्टर शिवानी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में समझा रहे हैं कि हम कितनी बार ये थॉट क्रिएट करते हैं कि हमारे बच्चे रॉन्ग है। यू नो हम सोचते हैं कि ये गलत है और हमें इनको करेक्ट करना है। तो हम हर चीज में उनकी फॉल्ट्स ढूंढते हैं। वो कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, टीवी कितना देखते हैं, हर चीज में हम एक यू आर रॉन्ग एनर्जी वाली वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। दिस नेगेटिव एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद नेगेटिव एनर्जी। तो फिर हम इसको क्या लेबल दे देते हैं, जनरेशन गैप। और फिर इवेंचुअली क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि हम आपको नहीं समझते, और बच्चे कहते हैं इवन वी डोंट अंडरस्टैंड यू। तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं वी टेल आवर चिल्ड्रन दैट दे आर रॉन्ग, आवर पेरेंट्स टोल्ड अस द सेम थिंग टू। Yes, it is true for every generation. When parents start to disapprove of their children's actions, the children stop discussing things with them. How many children today share everything with their parents? We receive so many long emails from children discussing their personal problems with us. At the end of the email, they request us not to share it with their parents. When a child is in pain, who is in the best position to help them? The parents. But the child does not want to share his problem with them because he knows that after listening to him, his parents will label him wrong. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि हर जनरेशन में ये होता है कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि हम गलत हैं। तो वही सिस्टर शिवानी बताते हैं कि जब पेरेंट्स डिसअप्रूव करते हैं बच्चों के एक्शन से, तो बच्चे उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तो आज की डेट में कितने बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ सब शेयर करते हैं। तो सिस्टर शिवानी वही बताते हैं कि उनको ईमेल्स आती हैं बच्चों की जिसमें वो अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, और एंड में क्या लिखते हैं कि हमारे पेरेंट्स को मत बताना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चों में और पेरेंट्स में एक फियर ना रहे। द चाइल्ड इज एबल टू डिस्कस एवरीथिंग ओपनली विद देयर पेरेंट्स। अदरवाइज वही वही होता है कि बच्चा सब छुपाने लग जाता है पेरेंट्स से, क्योंकि उनको यही डर है कि जो भी हम बोलेंगे हमारे पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम गलत हो। When a child is young, he shares everything with his parents, even little details like what happened at school, what the teacher said, and so on. The parents listen gladly to him and smile at him. So, an environment of acceptance in the house helps the child to share. But when he grows up and is in his teens, he stops sharing things with his parents. Now, parents have to question him about everything, but the child does not share even when asked to do so. Even if they enter his room, he says, please go out and close the door. I want my space. This is because when the child was young, he was appreciated for whatever he shares. Later, it becomes a little difficult for parents to accept everything he tells them. तो वही सिस्टर शिवानी समझा रहे हैं कि जब जैसे बच्चा छोटा होता है वो हर एक चीज पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं, बट एज वो द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, वो टीन्स में आते हैं बच्चे, वो शेयर करना बंद कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स क्वेश्चन करते हैं। तो वो क्या फिर बच्चे क्या कहते हैं कि हमें अपना स्पेस चाहिए। तो इसका रीजन क्या है कि जब छोटे थे वो हर बात उनकी अप्रिशिएट होती थी, बट जब अब बड़े हो गए कई चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को एक्सेप्ट करना मुश्किल है। For example, if a child tells his parents that he bunked his classes to go to the movies, what is he going to receive from them? तो सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं अ लॉन्ग लेक्चर। सिस्टर शिवानी कहते हैं दे विल गेट एंग्री विथ हिम एंड से यू आर रॉन्ग, हाउ कुड यू डू दिस, दिस इज नॉट what we taught you, don't you know how much we spend on your tuition, and so on. Hearing such things, the child feels rejected. He is unable to figure out what made the parents react because he does not feel his action is wrong. To him, informing his parents is just a regular everyday sharing that he is used to doing.
तो सिस्टर शिवानी कहते हैं अगर बच्चों ने ये बोला कि हम कुछ ऑनलाइन तो नहीं होगा। जस्ट वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सॉरी अबाउट दैट। या सो वो सिस्टर शिवानी वही कहते हैं कि अगर कुछ बच्चा बंक करेगा तो पेरेंट्स यही करेंगे कि यू आर रॉन्ग, कि आप कैसे ये कर सकते थे। तो वही फिर द चाइल्ड फील्स रिजेक्टेड, तो इस चक्कर में फिर बच्चे इन्फॉर्म करना बंद कर देते हैं पेरेंट्स को। If this pattern of sharing and rejection goes on for a while, the child stops sharing anything anymore with his parents. This creates a gap between them. The gap is created because parents stop accepting the child and because they do not have the power to remain stable while listening to his truth. Now we have reached a point where children seek help from counselors instead of sharing their problems with parents. If children feel they would rather share their personal issues with a stranger, a professional, then it is a big question mark over our family setup. Parents really need to think about it. तो वही सिस्टर शिवानी कहते हैं कि वो जब बच्चे इन्फॉर्म करते हैं पेरेंट्स को, वो रिजेक्शन फील करते हैं किड्स। तो इससे क्या होता है, देयर इज अ गैप, बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप हो जाता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे हमारा ट्रूथ। तो अब इतनी प्रॉब्लम आ गई है कि अब बच्चे काउंसलर्स से जाके शेयर करते हैं अपने प्रॉब्लम्स इंस्टेड ऑफ शेयरिंग विद देयर पेरेंट्स। तो दे फील मोर सेफ टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। तो इससे फिर बहुत ज़्यादा फैमिली पे क्वेश्चन मार्क हो गया है, और पेरेंट्स को इस बारे में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सो वीव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू सो मच everyone for joining. ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आज के सेशन से हम बहुत कुछ सीखा है सबने। थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, सो वील सी। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you. So we'll see you tomorrow now with the next chapter. Thank you. Bye bye.